So today's topic is for us transistor as an amplifier. As an amplifier. Transistor as an amplifier. Okay. देखो बेटा, in common base configuration, input resistance जो होता है, input resistance will be equal to change in potential of your emitter base divided by your change in your emitter current. ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V is equals to I into R. Input potential is equals to your, इसका input potential is equals to your right now potential across your emitter base and current across your emitter when it is your common base. When it is your common base, उसी तरह से output potential is represented by R naught. R naught के पास देखो क्या होता है, basically we are having the potential across your common base and input क्या होता है इसके लिए, collector current होता है. तो current अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, तो resistance of output will be equal to your change in potential across your collector base divided by current इसमें जो जा रहा है that will be your collector current at your common emitter. At your common emitter. Emitter is right now IE. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, तो एक हो गया मेरा इनपुट पोटेंशियल, इनपुट रेसिस्टेंस होगा, और एक हो गया आउटपुट रेसिस्टेंस. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट करंट एम्प्लीफिकेशन, इसके अंदर करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आर, जिसको हम लोग करंट गेन बोलते हैं, और योर करंट गेन represented by formula alpha of your AC. याद है किसी को? Alpha of your AC will be equal to your alpha of your AC. Alpha AC is nothing but what? Current gain or current amplification factor. That will be equal to your change in your collector current divided by your change in your emitter current at your common emitter. At your common emitter. Sorry, common base है नहीं, common emitter लिख लो. This will be your common base. ठीक है ना? ये कैसा आया? इन दोनों का रेशियो लेने से, isn't it? So इन दोनों रेशियो लेने से right now for me this one is of your emitter and as well as of your bit. ये emitter base होगा, common base. This one is of your emitter base बराबर. So alpha is equals to delta IC divided by your delta IE and that one is given relation. उसी लिए DC के लिए क्या लिखते हैं? डायरेक्ट करंट के लिए alpha of DC will be equal to your collector current divided by your emitter current. Collector current divided by your emitter current. ये दो formulas होते हैं which are very very important for your competitive examination. Alpha of your AC and alpha of your DC part of relation. Clear है? So in common base configuration, input resistance लिखा है, output resistance लिखे. Then we are talking about your current amplification factor. Current amplification factor, which is represented by your alpha, and or it is also called as of your current gain. And it is also called as of what? Current gain part of relation. इसका circuit diagram देखो बेटा क्या होता है. ये हम लोग ने क्या लिया था? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एज ऑफ योर एम्पलीफायर इन द कॉमन बेस. अगर कॉमन एमिटर होता है तो क्या करते बेटा? नेक्स्ट वन देख लो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. सो इससे पहले हम लोग कॉमन बेस के बारे में बात किया था, अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन एमिटर के कॉन्फ़िगरेशन. इसका डायग्राम देखो बेटा, सेम इनपुट और पोटेंशियल होता है बेसिकली. सो ये हो गया इसका सर्किट. देखो यहाँ पर ये हो गया इनपुट का सिग्नल, दैट इज नथिंग बट अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल, और दिस वन इज बीन कनेक्टेड टू योर, यहाँ पर मैं इसको
इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. दिस वन इज ऑफ योर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर विद कॉमन एमिटर. एमिटर शुड बी कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम. तो यहाँ पर से कैसा जाएगा, यहाँ पर से कैसा जाएगा. एंड दिस वन इज बीन कनेक्टेड टू वन सर्किट, दिस वन इज कनेक्टेड टू अनदर वन. तो ये जो हो जाएगा दिस वन इस तरह से. सो ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर. I'll write here with red pen. So this one is right now P. This one is of your N. NPN transistor. NPN transistor. ठीक है. And this is connected to one part of a circuit, and this is connected to the another part of a circuit. ठीक है. अब इसका रेजिस्टेंस लगाओ बेसिकली. आई टोल्ड यू ऑलरेडी. देखो बेटा इसमें क्या होता है, यहाँ पर एमिटर ये हो गया कॉमन, और ये हो गया बेस. ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका एमिटर, और ये हो गया आपका कलेक्टर. एमिटर इज कॉमन फॉर इनपुट एंड एमिटर इज कॉमन फॉर योर आउटपुट. दिस शुड ऑलवेज बी इन फॉरवर्ड बायस. मैंने बोला था आपको, दिस शुड ऑलवेज बी इन योर रिवर्स बायस. दिस शुड बी ऑलवेज इन योर रिवर्स बायस पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है ना. अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं. फॉरवर्ड बायस मतलब P should be connected always to the positive terminal of your battery and N should be connected to the negative terminal of the battery. ये हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको आउटपुट पोटेंशियल इज बीन कनेक्टेड टू योर रेजिस्टेंस, और इसका जो टर्मिनल हम लोग लगा रहे हैं राइट नाउ, N should be connected. This should be in the reverse bias. This should be in the reverse bias. That means N should be connected to your, N should be connected to what बेटा, कोई बता सकता है? Negative terminal. It should be connected to negative. This one is positive, negative, and positive terminal of the battery. तो ये हो गया लोड रेसिस्टेंस. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर आउटपुट. आउटपुट. तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट पोटेंशियल. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर V0. अब करंट के डायरेक्शंस बताओ मेरे जल्दी से. यहाँ देखो, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. N should be connected to positive terminal and this N should be connected to the negative terminal. तो ये पार्ट हो गया नेगेटिव, और कलेक्टर should be connected to the positive terminal. That is the reason it is called as of your reverse bias part of relation. अब इसमें जो करंट जाएगा इसमें से इस तरह से जाएगा. So here this will be your collector current and from here there is a positive current right now. तो इसमें से जो करंट जाएगा यहाँ पर, this will be your base current. So this base current and the collector current will meet somewhere here. तो इसमें जो collector current आएगा that will be equal to your emitter current. तो ये हो गया मेरा आउटपुट. that is nothing but of your R output, और ये हो गया मेरा R input. इसको हम लोग बोलते हैं VBB का नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग देते हैं VCC कॉमन कलेक्टर, और ये हो गया बेस. VBB को हम लोग ले लेते हैं VB पार्ट. इनपुट को हम लोग दे रहे हैं नाम VB. This should always be connected in forward bias and this should always be connected in the आउटपुट बायस. तो अब जैसा हम लोग इनपुट देते हैं बेटा, इसके यहाँ पर देखो, इनपुट सिग्नल जो देते हैं AC का, ये इस तरह से होता है. ओके ना. सो ये जो करंट होता है मेरे पास बेस करंट होता है. ये सिग्नल अपने ने दिया. दिस इज अ करंट विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम का ग्राफ. जो आउटपुट मुझे निकलता है यहाँ पर हम लोग को आउटपुट निकलता है बेसिकली. सो सी आउटपुट हाउ डू यू गेट राइट नाउ. यहाँ पर जो आउटपुट निकलता है देखो जल्दी से. तो इसको यहाँ पर हम लोग ये देखो, ये छोटा सा सिग्नल आपने दिया और आउटपुट आया आपको इस तरह से. ठीक है ना. तो ये जो करंट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, इस करंट को हम लोग बोलते हैं IC. इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, IC. दिस इज अ करंट वर्सेस योर टाइम ग्राफ. दिस इज करंट वर्सेस योर टाइम ग्राफ पार्ट ऑफ रिलेशन. तो आउटपुट क्या हो जाएगा मैक्सिमम. आपको इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. देखो यहाँ हो गया ये इस तरह से, ये हो गया टाइम, और ये हो गया कलेक्टर करंट. दैट इज नथिंग बट IC. और इसका ग्राफ यहाँ पर कहीं पर होगा, और पोटेंशियल देखो ना इस तरह से आएगा इसका. ये करंट यहाँ से यहाँ तक जो ले रहे हैं दैट इज नथिंग बट ऑफ योर IC. ठीक है ना. छोटा सा सिग्नल दिया आपने. आउटपुट सिग्नल इज नथिंग बट ऑफ योर मैक्सिमम पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव. इनपुट रेसिस्टेंस इसका छोटा होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस इसका बड़ा होता है. सो इनपुट रेसिस्टेंस इज लेस एंड आउटपुट रेसिस्टेंस इज योर मोर. तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो थोड़े टर्म्स याद रखने हैं इसके अंदर बेसिकली. तो एक होता है इनपुट रेसिस्टेंस. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर R इनपुट. फर्स्ट फॉर्म, इनपुट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू योर potential across your base and emitter divided by your collector, sorry, base current. बेस करंट ये हो गया इनपुट ना, बेस करंट, और इसका हो गया बेस एंड एमिटर पार्ट ऑफ रिलेशन.
और दिस वन इज एट योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कॉमन बेस पार्ट एफिलिएशन. ठीक है ना, कलेक्टर बेस का पोटेंशियल. सेकंड वन है आउटपुट. Our output is represented by R naught, that will be equal to your potential across your collector and base divided by output current जो आएगा that will be equal to your IC, and this one is your base IB. ठीक है, इसमें हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बात करते हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर. करंट एम्पलीफिकेशन factor, or it is also called as what, current gain. It is also called as of your current gain. ज्यादा दिमाग मत छटको इसके बीच में, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है ये, तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. बट मेक श्योर दैट अल्फा कब यूज करते हैं, बीटा कब यूज करते हैं. बीटा जब यूज होता है व्हेन इट इज ऑफ योर कॉमन एमिटर, तो इसको हम लोग लिखते हैं बीटा ऑफ योर एसी विल बी इक्वल टू योर change in collector current divided by your change in your base current, change in your base current at your common emitter. और बीटा ऑफ योर डीसी हम लोग लिखते हैं IC divided by your IB, IC divided by your IB. So these are the two important formulas you need to remember. एक है अल्फा और एक है बीटा. अल्फा कब यूज करते हैं when base is common, बीटा कब यूज करते हैं when emitter is of your common part affiliation. ठीक है ना. सो ये छोटे से छोटे टर्म्स है जिसको हम लोग को थोड़ा बहुत याद रखना है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है. ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बोथ फॉर द कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या था बेटा, एमिटर करंट विल बी इक्वल टू, emitter current will be equal to your base current plus of your collector current. बताइए ना. अब पूरे इक्वेशंस को LHS और RHS को you divide by your collector current. ये हो गया emitter current divided by your collector current is equals to your base current divided by your collector current plus of your, ये हो गया IC divided by your IC. तो ये वाला तो कैंसिल हो गया. IE by your IC क्या होगा बेटा, IE by your IC will be equal to how much, देखो यहाँ पर IE by your IC, IC by your, यहाँ कहाँ गया, या IC by IE is of your alpha, तो इसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ तो कितना बन जाएगा 1 by alpha. तो ये हमारे पास 1 by alpha, और ये हो गया IB by IC, यहाँ पर अभी लिखा है देखो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर में IC by your IB, IC by IB is बीटा, तो IB by IC कितना हो जाएगा 1 by बीटा, तो ये हो जाएगा 1 by बीटा प्लस ऑफ योर 1, isn't it? तो इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो विल बी राइटिंग दिस वन एज ऑफ योर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 by अल्फा इज इक्वल्स टू, तो इसमें से हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय योर बीटा. ठीक है ना. तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है. उसी तरह से 1 by बीटा को बाहर निकालो, इसमें से 1 by बीटा को अगर बाहर निकाला तो 1 by बीटा इज इक्वल्स टू 1 by अल्फा माइनस ऑफ योर 1. तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा डिवाइड माइनस ऑफ योर अल्फा. ठीक है ना. तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है फॉर अल्फा एंड एज वेल एज ऑफ योर बीटा पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को. चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी से. मान के चलो वी हैव गॉट ए चेंज ऑफ 200 millivolt in your base and emitter voltage. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. emitter voltage causes a change of 100 microampere in the base current, ठीक है. the input resistance of transistor कितना बनेगा, the input resistance of transistor is, चलो जल्दी से करो. फर्स्ट ऑप्शन है 1 किलो ओम, सेकंड ऑप्शन है 2 किलो ओम,
थर्ड वन है 6 किलो ओम एंड फोर्थ वन इज 8 किलो ओम। कोई बोल सकता है क्या? देखो जल्दी से, a change of your 200 millivolt in base emitter voltage, base emitter voltage, base और emitter voltage मतलब क्या बेटा? इनपुट, ठीक है ना। सो इनपुट वोल्टेज दे रखा है अपने को, V इनपुट इज इक्वल्स टू योर कितना है 200 मिलीवोल्ट, 200 मिलीवोल्ट, यानी दिस विल बी 200 into 10 to the power of -3 volt, causes a change of 100 माइक्रो एम्पियर इन द बेस करंट। तो बेस करंट क्या आ जाएगा इसमें? IB विल बी इक्वल टू योर बेस करंट मतलब इनपुट करंट, तो इनपुट लिख लेता हूँ मैं सेकंड डायरेक्टली। ऑप्शन। या सो दिस विल बी योर इनपुट, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 100 माइक्रो एम्पियर्स, तो ये हो गया मेरे पास 100 into 10 to the power of -6 एम्पियर्स। तो हम लोग को निकालना क्या है? रेसिस्टेंस, द इनपुट रेसिस्टेंस निकाल रहा है। सो आर इनपुट विल बी इक्वल टू योर V इनपुट डिवाइडेड बाय योर करंट इनपुट I इनपुट। V इनपुट कितना है 200 into 10 to the power of -3 divided by this one is your 100 into 10 to the power of -6, ये दो चले गए, so this will be 2 10 to the power of, ये ऊपर चले गया तो बना कितना मेरे पास 2 into 10 to the power of 3, यानी this will be equal to 2 kilo ohms। second option will be the answer। clear है? यस सर। okay, so that was about your emitter and base junction के basic formulas थे basically। तो आया कितना अपने को 2 किलो ओम्स। और एक क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन ये NPN ट्रांजिस्टर, in a NPN transistor, the emitter current is, emitter current मतलब IE is equals to 1 milliampere, emitter current is equals to 1 milliampere and alpha value is given as 0.95. The base current and collector currents are, and collector currents are, first option 0.15 milliampere, comma 0.85 milliampere. Second one is 1.95 milliampere and 0.05 milliampere. Third one is 0.95 milliampere and 0.05 milliampere. And fourth one is 0.05 milliampere, comma 0.95 milliampere. चलो देखो अभी, इन NPN ट्रांजिस्टर द एमिटर करंट इज IE, तो अल्फा दे रखा है मेरे पास 0.95, तो रिलेशन क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू योर IC डिवाइडेड बाय योर IE, तो IC कितना बन जाएगा बेटा? IC इज इक्वल्स टू योर IE इनटू योर अल्फा, ठीक है ना। सो IE वैल्यू कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? IE की वैल्यू दे रखा है 1 मिली एम्पियर इंटू अल्फा की वैल्यू दे रखा है 0.95, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 0.95 मिली एम्पियर। 0.95 मिली एम्पियर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 3। नेक्स्ट वाला मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इसमें से ये आंसर बता सकता हूँ। अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बेस करंट विल बी इक्वल टू योर एमिटर करंट माइनस ऑफ योर कलेक्टर करंट, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस ये हो गया 0.95, तो 1 माइनस 0.95 कितना आ जाएगा बेटा? 0.05 मिली एम्पियर्स। आया सभी को? क्लियर है? यस सर। चलो, सो अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे बेटा, मोस्ट प्रोबेबली ऑन योर सेमीकंडक्टर्स, एंड द लास्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस वन इज अबाउट योर लॉजिक गेट्स, एंड व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे गेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल, PNP ट्रांजिस्टर के, NPN ट्रांजिस्टर के, एंड NAND गेट और गेट सभी कंडीशंस, लेकिन इसमें थोड़े ग्राफ क्वेश्चंस भी अपने को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, सो वी नीड टू डू दैट वन आल्सो। Today I'm sending you one assignment on your exclusively transistors, 20 questions है,
वो आप लोग खत्म कर लीजिए, देन विल ट्राई टू स्टार्ट विद योर लॉजिक गेट्स। अभी टाइम कितना बाकी है अपने पास? चलो 10 मिनट तो टाइम होगा ना, तो लेट अस ट्राई टू स्टार्ट विथ योर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या होता है बेटा? दिस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। जैसे सिग्नल्स में अपने पास नंबर्स आते हैं बेसिकली, 10 सेकंड्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोके जाते हैं सिग्नल्स पे। दे ऑल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉजिक गेट्स। सो आई कैन राइट नाउ फॉर राइट नाउ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स are basic or the basic building blocks, or the basic building blocks, basic building blocks of any digital system, of any digital system, of any digital system. In electronic circuits beta, it has one or more input but output will be only one. ये पॉइंट पे अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं it is an electronic circuit, it is an electronic circuit having one or more than one input, and only one output only will be one, but input will be more than two. It can be one or more, anything. This relationship between input and output is based upon certain logic beta that we'll try to do it out basically. So that is known as of your logic gates. So I can write here one point. The relation between this input and output is based on some logic, ठीक है ना? So let us try to do the gates basically. तो इसमें फर्स्ट वाला गेट होता है AND gate. First one is known as of your AND gate. AND gate. AND gate का सिंबल देखो इस तरह से होता है. I'm writing the symbol here for the first one. AND gate का सिंबल ऐसे बॉक्स टाइप में कुछ होता है बेसिकली. ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ कर लो और उसके सामने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर लो छोटा सा. दिस वन इज योर सर्कुलर आर्क. तो इसके 2 इनपुट्स हो गए मेरे पास. एक इनपुट है ये और एक इनपुट है बी. तो ये 2 इनपुट्स है और इसका एक ही आउटपुट आएगा. दैट विल बी इक्वल टू योर वाई आर एक्स, जो भी है. कभी कभी वाई लिखते हैं या कभी कभी हम लोग एक्स लिखते हैं या कभी कभी हम लोग जेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली. और इसका सिंबल है डॉट बेटा. इसका सिंबल है डॉट पार्टिफिकेशन. सो दिस इज योर एंड गेट, दिस इज योर एंड गेट. इसका सिंबल जो होता है, अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है, y इज इक्वल्स टू, याद है किसी को, a डॉट b. y is equals to a dot b. How it is read beta? Y is equals to a and b. A and b. Y is equals to how much for me? Your a and your b. तो ये हो गया इनपुट ये हो गया इनपुट b और ये हो गया इसका आउटपुट. मान के चलो y. मतलब y विल बी इक्वल टू बोथ ये एंड एज वेल एज ऑफ ए b. यानी अगर ये 0 होगा, b 0 होगा तो y भी कितना हो जाएगा? 0. अगर 0 है, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 0. ये 1 है, ये 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 0. Both of them are 1 and 1. Input will be equal to, ठीक है ना? So this is something like that. तो ये हो गया इसका इनपुट. अगर इसको सर्किट डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सो इट इज समथिंग लाइक दिस. मान के चलो अपने पास एक सर्किट है समथिंग लाइक दिस, and this is connected to some source of battery, and ये पूरा एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है.
दिस वन इज योर बल्ब। ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, और ये सम पोटेंशियल लगा रखा है हम लोग ने बैटरी V। अगर मान के चलो बोथ ऑफ देम आर ओपन, विल द बल्ब ग्लो? नो। अगर A is closed, मान के चलो दिस इज A and this one is B, A is closed and B is open, तो भी बल्ब में करंट नहीं फ्लो होगा बिकॉज इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ A is open and B is closed, तो कभी भी ये भी जब भी फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। इफ बोथ ऑफ देम आर क्लोज्ड, that means 1 and 1, so close is represented by 1 and open is represented by 0, तो bulb will glow, that is something like that। ठीक है, is it clear? ये हो गया एंड गेट। उसके बाद हम लोग चलते हैं और गेट। उसके बाद चलते हैं हम लोग और गेट पे। इसका इनपुट थोड़ा अलग होगा, ये थोड़ा पहले आर्क मार लो, हर चीज इज इन टर्म्स ऑफ ए स्मॉल आर्क्स। तो इसके लिए हो जाएंगे 2 इनपुट्स। ये हो गया यहाँ पर एक इनपुट, दिस वन इज योर ए, और इसका हो गया एक और एक इनपुट, दिस वन इज योर बी, और एक आउटपुट आएगा यहाँ पर। इसका आउटपुट रिप्रेजेंटेड बाय y, और समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, और समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। तो ये हो गया अपना और गेट। और गेट इज समथिंग लाइक दिस। मान के चलो मेरे पास एक बैटरी है, इस तरह से एक स्विच है, दिस इज योर ए, और यहाँ पर एक स्विच है इस तरह से, ठीक है, 2 स्विचेस है, दिस इज योर बी, और this one is connected to an external source of your battery right now here, and here it is been connected to your bulb। ठीक है, both of them are open, bulb will glow? No। if A is closed, B is open, then also there is a flow of a current in the circuit, so bulb will glow। if A is open and B is closed, then also there is a flow of a current in this one, so bulb will glow। both of them are been closed, even in that case the bulb is glowing। तो इसका लॉजिक सिंबल जो होता है बेसिकली आई एम राइटिंग हियर सी, सो y will be equal to your a plus of your b, and it is read as y is equals to a or your b, y is equals to your a or your b part of relation। ठीक है ना। अब इसका गेट का रिलेशन देखो बेटा, दिस विल बी इक्वल टू योर a, और ये हो गया b, और ये हो गया y, y is equals to your a plus of your b। ठीक है, अब इसका इनपुट देखो, अगर मान के चलो ये 0 है, बी 0 है, तो वाई भी 0 होगा। अगर मान के चलो ये 0 है, बी 1 है, यानी क्लोज किया, तो ये 1 हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। ये 1 है, ये 0 है, बल्ब ग्लो करेगा, तो ये भी 1 है। बोथ ऑफ देम आर 1 and 1, तो ऑब्वियसली दिस वन इज आल्सो योर। क्लियर है? सो दिस वन वाज अबाउट योर ऑर्बिट। और उसके बाद आता है थर्ड वन, इन्वर्टर। इन्वर्टर, जैसे घर में अपने पास इन्वर्टर होता है, करंट गया कि इन्वर्टर ऑन, करंट आया इन्वर्टर ऑफ, सो इट इज द रोल प्लेड बाय योर ऑन एंड हाफ पार्ट ऑफ रिलेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट, और जनरली इन्वर्टर होता है। प्लस मतलब माइनस, माइनस मतलब प्लस, इनपुट अगर प्लस है तो आउटपुट आपको नेगेटिव आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये ट्राइंगुलर शेप सिंबल में होता है इस तरह से, और उसके सामने एक छोटा सा 0 का सिंबल होता है जो बोलता है कि अगर ऐसे तो ये नो कर देगा। तो ये हो गया इसका आउटपुट, और ये हो गया इसका इनपुट। इनपुट मान के चलो इफ इट इज ये, देन आउटपुट y विल बी इक्वल टू योर a नॉट। a नॉट को हम लोग a डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली लॉजिक गेट के हिसाब से। द सिंबल फॉर दिस वन इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू a नॉट भी लिखते हैं, और हम लोग इसको a डैश भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, वो यू कैन राइट लाइक दैट डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। ये बार मतलब नॉट का सिंबल है, यानी ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अगर a की वैल्यू है मान के चलो 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर a की वैल्यू मान के चलो 1 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। सो दिस इज योर लॉजिक गेट फॉर योर इन्वर्टर, और आई कैन से फॉर द नॉट गेट। ठीक है, अगर मैं नैन गेट लिख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ वन देखो, नैन गेट।
NAND गेट. NAND गेट मतलब combination of your AND plus NOT. It is a combination of your AND को आप लोग NOT गेट ऐड कर रहे हो, तो n वैल्यूज हम लोग ने सामने लग दिया, तो ये हो गया NOT. यानी AND गेट का सिंबल देख लो एक बार. AND गेट कैसा हो रहा था, इस तरह से. तो इसको सामने अगर एक जीरो का सिंबल डाल दें, दैट विल बिकम फ्रॉम योर NOT गेट. तो ये होता है NAND गेट का सिंबल इस तरह से. ये हो गया एक छोटा सा डब्बा, ये हो गया R, और इसके सामने अब हम लोग डालेंगे एक NOT ऐसा. ठीक है ना. तो अब इसके दो इनपुट्स हो गए मेरे पास. यहाँ पर देखो, ये हो गया इनपुट ये, और ये हो गया इनपुट बी. तो इसका जो आउटपुट आ रहा है बेसिकली y, तो क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल्स टू योर ए डॉट बी का नॉट होगा. ठीक है ना. मतलब ये बी और y इज इक्वल्स टू योर ए डॉट बी नॉट. ऐसे लिखते हैं ना बेटा. ए डॉट बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए आर ए बी बोल के भी लिख सकते हैं. यहाँ लिखा है मैंने y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, और इसको हम लोग डायरेक्टली ए बी भी लिख दो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सो दिस इज योर सिंबल फॉर योर एंड गेट. तो इसके ऊपर नॉट लगा तो वो बन जाएगा मेरे पास नाइन गेट. ये बन जाएगा नाइन गेट. यानी अगर ट्रूथ टेबल ले रखा हूँ इसका बेसिकली, तो ये हो गया मेरे पास जीरो, ये हो गया मेरे पास जीरो, तो ये भी हो गया कितना, वन. नॉट होगा ना. अगर ये जीरो ये वन है, तो ये कितना होता, जीरो होता था. तो अब यहाँ पर हो जाएगा वन. दिस इज वन एंड जीरो, दिस विल बिकम जीरो, बट नॉट है तो ये भी बन जाएगा वन. अगर ये वन है, ये वन है, तो यहाँ पर वन होता था, लेकिन नॉट है तो ये कितना बन गया, जीरो. क्लियर है सभी को. सो दिस वन वाज ऑफ योर ट्रूथ टेबल फॉर योर NAND गेट. ठीक है. तो टाइम बचा तो विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस वन. ठीक है. Yes, sir. और है नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज योर NOR गेट. NOR गेट. NOR गेट मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर OR एंड NOT. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर OR गेट को हम लोग NOT गेट लगा रहे हैं. सिंबल देखो ऐसा हो जाएगा बेसिकली. ये हो गया OR गेट, इसको एक छोटा सा जीरो दे दो यहाँ पर, तो ये बन गया इसका आउटपुट. तो ये हो गया मेरे पास इनपुट ये, और ये हो गया इसका इनपुट बी. सो दिस वन इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट, NOR गेट. सो NOR गेट का लॉजिक क्या होता है देखो जल्दी से. x इज इक्वल्स टू सिंबल हो जाएगा, x लिखो या y लिखो. सो y इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, a प्लस b का नॉट. ठीक है ना. a प्लस बी का नॉट. अगर ट्रूथ टेबल लिख लो मैं इसका, ये हो गया ये हो गया b, ये हो गया y इज इक्वल्स टू a प्लस b नॉट. दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो योर जीरो. जीरो की वन, वन. दिस विल बी इक्वल टू वन. अगर ये हो गया मेरे पास मान के चलो जीरो, ये हो गया वन, तो ये कितना होता था अपने पास, वन. लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये जीरो. पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वन ये जीरो, तो वन होता था. ये नॉट है तो ये जीरो बन जाएगा. और ये वन और ये वन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन होता था, लेकिन नॉट है तो ये बन गया मेरे पास जीरो. ये हो गया इसका लॉजिक गेट, सॉरी ट्रूथ टेबल. क्लियर है सभी को. चलो. तुम बोलो क्यों बोलो. टाइम कितना है बेटा अभी, 6. एक्सक्लूसिव और गेट. XOR मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट. This one is called as of your exclusive OR gate. Exclusive OR gate. ठीक है ना. तो सिंबल देखो इसका कैसा होता है. ये हो गया आर्क वाला सिंबल इस तरह से, R वाला है, और ये हो गया इसका आउटपुट यहाँ पर Y, और इसका हो गया यहाँ पर इनपुट, और ये हो गया इनपुट. अगर इसके सामने हम लोग और एक आर्क डाल दें इस तरह से, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्सक्लूसिव OR गेट. यानी ये हो गया इसका इनपुट ये, और ये हो गया इसका इनपुट बी. टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट. तो इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे देखो बेटा राइट नाउ.
y will be equal to, this one is your exclusive OR gate, y will be equal to your a प्लस का 0 डाल दो एंड दिस विल बी योर b, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a नॉट b प्लस a b नॉट, या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसा आप लोग को कन्वीनियंट लगे वैसा आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्सक्लूसिवली। यानी मैं इसका अगर ट्रूथ टेबल लिख रहा हूँ, जैसे हो गया बी, ये हो गया बी, और ये हो गया इसका ए बार, ये हो गया इसका बी बार, और इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर y दैट इज इक्वल्स टू योर ए बार बी प्लस ए और बी बार। यानी कि अगर a की वैल्यू मेरे पास 0, b की वैल्यू 0, this will be your 0, this will be your 1, this will be 1, this will be 0, this will be 1 and this will be 1। तो अब इसका इनपुट देखो यहाँ पर, अगर ये 0 है तो इसका नॉट है तो ये बन जाएगा यहाँ पर 1, ये 0 है तो यहाँ पर 1, ये 1 है तो ये 0, ये 1 है तो यहाँ 0। b का नॉट ये 0 है तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 1, और ये 1 है तो ये बन जाएगा 0, ये 0 है तो ये बन जाएगा 1, ये 1 है तो ये बन जाएगा 0। तो आउटपुट क्या आता है देखो राइट नाउ, ए बार डॉट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो 0 and 1, द आउटपुट विल बी इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर बी, ए बार और बी। उसके बाद हो गया ए एंड बी बार, इसके लिए कितना हो जाएगा 1, 0 एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर ए बार एंड एज वेल एज ऑफ योर 0,